Good morning, children. In the last video, we had studied about factors, which is taken from the chapter number 6, that is factors and multiples. Okay? So today, let's revise one more time what are factors. Factors of a number divide the number completely. Factors of a number, it means we have a number here that is 15. If we'll just take some numbers which is exactly divide this one. Okay, so let's take the number 3. 15 divided by 3. Okay, so the answer, just take it in long division method. 15 divided by 3. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 fives are 15. It is divisible exactly. ओके 3 से आपका 15 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है. आपको कैसे पता? बिकॉज द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो. आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो ज़ीरो है एंड आपका कोशेंट है 5. ओके, सो दीज two numbers, 2 digits are known as the factors of this one. Okay, simply we just write it in multiplication form. 3 multiplied by 5 is equal to 15. It means these two numbers are known as the factors of 15. Okay, ये हमारे 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे. इट मीन्स फैक्टर्स ऑफ अ नंबर डिवाइड द नंबर कम्प्लीटली. हमारे पास एक नंबर दिया है, इसके जो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 3 एंड 5 हो जाएंगे. वाई? बिकॉज 3 से भी आपका 15 डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी आपका 15 डिवाइड हो जाएगा. इट मीन्स दैट ये 3 की टेबल में भी आता है 15 एंड 5 की टेबल में भी आता है. ओके, so these two numbers are known as the factors of 15. Understood everyone? Okay, in our previous tutorial class we had already done exercise 6a, question number 1, question number 2, question number 3 and 4. So let's start question number 5. This question you will solve in your book. Okay, you will supposed to write only true and false. So just look at here. Question number 5, say whether the following are true or false. Number A, 5 is a factor of 15. How will you check it? You just read the table of smaller digit, smaller number for the greater number. आप जो आपका बड़ा डिजिट है उसके लिए आप टेबल रीड करना स्टार्ट करोगे कि वो उसकी टेबल में आता है या नहीं. सो जस्ट चेक इट. 5 की टेबल में आपका 15 आता है. Just recite the table of 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 5 threes are 15. Okay, इसका मतलब 15 5 की टेबल में आता है. It means it is true. Okay, like this you will solve the rest of the questions. So just look at the question number B, that is 0 is a factor of 4. Can you tell me? Anyone? आप लोगों में से कोई बता सकता है कि 0 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4? नो. वाई? बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ इक्वल टू 0. अगर हम किसी भी नंबर को इफ़ विल मल्टीप्लाइड 0 by 1 is equal to, we'll get 0. If we'll multiply 0 by 2, we'll get 0. 0 by 3, we'll get 0. 0 by 4, we'll get 0. So on. तो जब भी हम 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सेम वही डिजिट आना चाहिए. जैसे 3 4s आर, अगर 12 है आपका, 12 आपको निकालना है तो उसके कितने फैक्टर्स बनेंगे? आपके 2 फैक्टर्स अलग अलग डिजिट्स नंबर हो सकते हैं, पर 0 नहीं होता किसी का भी फैक्टर. हमारा 1 से स्टार्ट होता है. 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर. लास्ट ट्यूटोरियल क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का जो हमारा स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो 1 होता है एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ होता है. ओके, अगर आपको 15 का स्मॉलेस्ट फैक्टर पूछा है तो आप 1 लिखेंगे. वाई? बिकॉज 1 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज़ इक्वल टू
15. So this will the smallest factor of 15 and this will the smallest factor of, sorry, this will be the greatest factor of 15. It means जो किसी भी नंबर का, दिए गए नंबर का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो 1 होता है एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ होता है. अंडरस्टूड? Okay, now rest of the questions, question number C and D, you will solve yourself in the book. You will just write here true, false, true, false, like that. Okay, now question number 6. Find the common factors for each of the following. Right? So common factors. What are common factors? Okay, let me explain. The numbers which are common among the factors of 2 or more numbers are called the common factors. The numbers which are common among the factors of 2 or more numbers are called the common factors. So it means we have a question that is A. 6 and 14 के आपको common factors find out करने हैं. Okay, so how will you solve? At first we will write all the factors of 6. So first factors of 6 is equal to 6 के आपको factors लिखने हैं. इसका मतलब कि आपको ये बताना है कि 6 किस किस की टेबल में आता है. हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे. 1 की टेबल में आता है. ओके, नाउ नेक्स्ट 2 की टेबल में आता है. नेक्स्ट 3 की टेबल में आता है. नेक्स्ट 4 की टेबल में नहीं आता क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होता है. ओके, 4 1 4 स्मॉलेस्ट आपका 4 एंड उसके बाद आपका 6 से बड़ा हो जाएगा 8 एंड 5 की टेबल में तो ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि 5 की टेबल में 1s हैं. यूनिट प्लेस आपकी 0 और 5 होती है ओनली. नाउ 6 की टेबल में 6 1s are 6. Yes, so all the factors of 6 are 1 2 3 6. Now we'll write 14 factors of 14. अब हम लोग फैक्टर्स ऑफ 14 के फैक्टर्स लिखेंगे. ओके, नाउ 14 के फैक्टर्स आपका 14 किस किस की टेबल में आता है आपको ये बताना है. I am reminding you one more time that you have to learn the table from 2 to 20 or 2 to 10 by heart. 2 to 10 तो आपको एनी हाउ लर्न करने हैं, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये डिजिट, ये नंबर किसकी टेबल में आता है. अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसकी टेबल में आता है तो आप अपने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे. ओके, सो टेल मी 14 आपका किसकी टेबल में आता है, किस किस की टेबल में आता है. 1 की टेबल में आता है. येस, 1 सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, काउंटिंग नंबर्स. ओके, 2 की टेबल में आता है. येस, 2 7s are. एंड 3 की टेबल में आता है 14. नो. 4 की टेबल में 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16. नो. 5 की टेबल में ऑब्वियसली नो. 6 2s are 12. नो. 6 7, येस, 7 की टेबल में आता है. 7 2s are 14 एंड इटसेल्फ अपनी टेबल में आता है. ओके, नाउ जस्ट टेक आउट द कॉमन फैक्टर्स अमंग दी ऑल फैक्टर्स. अब आपको इस लाइन में 6 के जो फैक्टर्स हैं एंड 7 के जो फैक्टर्स हैं इन दोनों में आपको बताना है कि कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर्स कौन सा है. अब आप बोलोगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमन. कॉमन मीन्स जो दोनों में आपको सेम टू सेम नंबर लग रहा है. येस, दिस वन कॉमन है एंड दिस वन 2 कॉमन है. ओके, जो आपके फैक्टर्स ऑफ 6 में 1 2 3 6 है एंड फैक्टर्स ऑफ 14 में 1 2 7 14 है. तो इसमें से आपको कॉमन फैक्टर्स सेलेक्ट करने हैं
कॉमन मीन्स जो दोनों में आपका सेम नंबर है, सेम डिजिट है. इट मीन्स 1 दोनों में आ रहा है एंड 2 भी दोनों में आ रहा है. दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 between 16 and 14. Okay, now rest of the questions you will solve in your worksheet. Okay, so students, we have done factors. Come to the our next topic, that is multiples. Actually, multiples we had already done in our previous tutorial classes. In the chapter number 4, that is multiplication में हम लोग multiples कर चुके हैं एक बार. Can you tell me what are multiples of a given number? आपको किसी भी नंबर के multiples आप मुझे बता सकते हैं कोई? Okay, one more time we'll revise it. What are multiples? Okay, here a multiple of a number is the product of the given number and some other counting numbers. Multiples supposed to be, we are writing here 2 multiplied by 4 is equal to 8. So in previous class we had learned it as these two are the factors of this number and this is known as the product. Okay, इसको हमने पढ़ा था, इसको हमने रीड किया था कि ये फैक्टर्स हैं और इसे हमने रीड किया था दिस इज़ द प्रोडक्ट. ओके, तो द अनदर नेम ऑफ इट इज़ मल्टीपल. इसे हम लोग मल्टीपल भी पढ़ते हैं. ओके, सो ये इसका ये 2 का मल्टीपल है. 8 2 का मल्टीपल है 4th नंबर पे. ओके, इफ़ क्वेश्चन इज़ आपको 2 के 4 5 6 supposed to be, I am giving you a question, just write down the first 4 multiples of 2. आपको 2 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं. सो हाउ वी फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर? We'll just multiply the counting number with the given number. We have taken the number 2 and we have to find out the first 4 multiples of 2. First 4 multiples of 2. हमें 2 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. सो what we supposed to do? We just multiply 2 with the counting numbers. So 2 multiplied by 1 is equal to 2. Then 2 multiplied by 2 is equal to 4. Then 2 multiplied by 3 is equal to 6. Then 2 multiplied by 4 is equal to 8. So these all are the multiples. These all are the multiples of 2. ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं. आपको अगर 2 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने के लिए बोलेंगे तो आप लिखेंगे 2 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स 2 4 6 and 8. Simply you can say that these are the tables. मतलब जो आपका गिवन, अगर आपको किसी भी नंबर का मल्टीपल्स पूछे है कि आपको इसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं तो यू विल जस्ट राइट डाउन द टेबल ऑफ द गिवन नंबर. आप उसकी टेबल लिखेंगे. ओके, अगर आपको फर्स्ट 4 मल्टीपल्स फर्स्ट 5 4 6 आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप फर्स्ट से स्टार्ट किया है तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना. और अगर आपको नेक्स्ट पूछा गया है नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स या नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स, सो यू विल स्टार्ट बाय फ्रॉम 2. आप 2 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. ओके, सपोज वी हैव अ नंबर हियर दैट इज़ 7. आपको पूछा गया है कि आपको 7 के नेक्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखने हैं. सो यू विल जस्ट मल्टीप्लाई 7 बाई 2. नेक्स्ट पूछा है आपको नेक्स्ट, सो आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे. 7 2s are 14. नेक्स्ट हियर नेक्स्ट 6 multiples.
7 के आपको 6 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6 are 42, 7 7s are 49, and 7 8s are 56. Now just count this. These number 1 2 3 4 5 6 7. हमने 7 तक टेबल लिख लिया है. ओके और हमें कितने चाहिए ओनली मल्टीपल्स? हमको ओनली 6 मल्टीपल्स चाहिए थे 7 के. नेक्स्ट 7 1 से स्टार्ट नहीं किया हमने. क्यों? बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग द नेक्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 7. आपको नेक्स्ट बताने तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे और ओनली इट इज़ आस्किंग दैट ओनली 6 मल्टीपल्स. सो 1 2 3 4 5 6. सो द मल्टीपल्स ऑफ 7 आर 14, 21, 28, 35, 42 and 49. 1 2 3 4 5 6. These 6 are the multiples of 7. Understood everyone? So here are properties of multiples. Point to be remember. ये पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर याद रखने हैं. जैसे आपने फैक्टर्स में थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स, उसमें आपने पॉइंट्स मैंने आपको बोला था ना लर्न करने के लिए, वैसे ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स भी होते हैं. ओके हियर एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1. ओके जो भी हमें नंबर दिया जाता है, कोई भी नंबर दिया है, सपोज टू बी इट इज़ 4 5 6 7 9 8 कुछ भी, तो वो मल्टीपल होता है 1 का. जैसे 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ इक्वल टू 5, 13 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ इक्वल टू 13, 108 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 108, 200 multiplied by 1 is equal to 200. So every number is a multiple of 1. Okay, means इसका मतलब ये है, simply we can say that 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं. जैसे 1 से हम सभी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, इन्वर्स फॉर्म होती है. जो ये मल्टीपल्स और फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स फॉर्म होते हैं. ठीक है. Okay, next is number 2. Every number is a multiple of itself. Okay, how? Here, just look at here. If we just write 1 multiplied by 14 is equal to 14, it means 1 14s are 14. देन वी जस्ट रिवर्स इट. हम इसको इधर ले आएंगे, इसको इस साइड लेके चले जाएंगे. 14 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 14. इट मीन्स दैट एवरी नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. कोई भी नंबर अपना ही मल्टीपल होता है. ओके, नाउ नंबर 3 इज़ every multiple of a counting number is either greater than or equal to the number. Example, the first 4 multiple of 4 are 4, 8, 12, 16. जैसे first 4 multiples of 4 are, okay, 4 के first 4 multiples आपके आ जाएंगे. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4s are 16. So these are the first 4 multiples of 4. Okay, these are the greater than the number or is equal to. It means 4 1s are 4 is equal to 4 4 के equal है, and rest of the digit 8, 12 and 16 are greater than 4. ये सारे 4 से ग्रेटर हैं. दस एवरी मल्टीपल ऑफ अ काउंटिंग नंबर, दीज आर द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन. काउंटिंग नंबर इज़ ईदर ग्रेटर दैन, देखो काउंटिंग नंबर या तो बड़े हैं, इज़ ग्रेटर देन, और इज़ इक्वल टू, या तो इक्वल टू हैं. ओके, इक्वल टू द नंबर. नाउ नेक्स्ट इज़ the first and the smallest multiple of a number is the number itself. Okay,
Number 4 point is the first and the smallest multiple of a number is the number itself. अगर हमसे किसी भी नंबर का फर्स्ट मल्टीपल पूछा गया है तो वो नंबर itself होता है, because we are multiplying the number with the counting number, the smallest counting number 1. क्योंकि वो smallest number क्यों होता है? क्योंकि हम उसे स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर हमारा कौन सा होता है? 1 होता है. सो दैट्स वाई द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर, हमारे पास 4 नंबर दिया है, उसका हमको फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट मल्टीपल लिखना है, तो दैट इज़ 4. क्योंकि उसके बाद हम लोग काउंटिंग नंबर से और मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो उससे बड़े होंगे, इसलिए the first and the smallest multiple of a number is the number itself होता है. Okay, now the last point, there are infinite multiples of a number, so the largest multiple of a number cannot be determined. You know that in we just counting the numbers 1 to 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, हम लोग काउंटिंग करते हैं नंबर, तो वो हमारे पास कितने सारे नंबर हो जाते हैं, इन्फिनिट, बहुत सारे, हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते हैं. जैसे आप लोग स्टार्स को काउंट कर सकते हो? नो. अपने हेयर को काउंट कर सकते हो? आपके सर में जितने हेयर है नहीं कर सकते ना. शुगर बॉल्स होती हैं एक साथ, उनको काउंट कर सकते हो? नो, यू कांट काउंट दैम. तो आप उतने सारे नंबर के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके आप पहले आपको उसको काउंट करना पड़ेगा, पहले आपको सारे स्टार्स को काउंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर आपको दिया है नंबर कोई भी, जैसे 4 को आपको पूरे स्टार्स को, तो आप नहीं कर सकते. तो वी कांट गेट दी लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर, किसी भी नंबर का हम लार्जेस्ट मल्टीपल नहीं फाइंड आउट कर सकते. ओके, सो जो हमारे मल्टीपल्स होते हैं वो इन्फिनिट होते हैं, मीन्स बहुत सारे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, बहुत सारे होते हैं. फैक्टर्स में वो हमारे लिमिटेड होते हैं, लेकिन इसमें हमारे वो इन्फिनिट होते हैं. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू चेक इट बिगर नंबर, जब हमें मल्टीपल्स चेक करना पड़ता है कि ये मल्टीपल है या नहीं, सो व्हाट वी विल डू, वी जस्ट चेक द बिगर नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर. अगर हम चेक करेंगे कि बिगर नंबर छोटे नंबर का मल्टीपल है या नहीं, वी डिवाइड द बिगर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर. हम बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे. इफ़ द रिमाइंडर इज़ 0, इट मीन्स द बिगर नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर. अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब ये है कि जो बिगर नंबर है वो स्मॉलर नंबर का मल्टीपल होगा. सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन, इज 45 अ मल्टीपल ऑफ 2? सो व्हाट वी विल डू, वी जस्ट डिवाइड 45 बाई 2. चेक करने के लिए कि हमारा 45 2 का मल्टीपल है या नहीं, वी विल जस्ट डिवाइड इट. सो इन लॉन्ग डिविज़न मैथड वी विल डिवाइड इट. 2 से हमको 45 को डिवाइड करना है, तो पहले हम फर्स्ट नंबर के लिए लेंगे. पहले हम फर्स्ट नंबर चेक करेंगे कि 4 2 की टेबल में आता है. येस, 2 2s are 4. सो 4 minus 4 0. नाउ वी हैव 1 digit left here, that is 5. ओके, सो 5 2 की टेबल में आता है? No. So we'll take the smaller number which is smaller than 5. जो just 5 से थोड़ा सा छोटी होगी हम उसे लेंगे. 2 1s are 2. It is very smaller. So 2 2s are 4, 2 3s are 6. 6 is greater than 5 and 2 2s are 4 is smaller than 4. 5, so we'll write 2 2s are 4. Now subtract it. 5 minus 4 is equal to 1. It means now what we will do, 2 की टेबल में 1 आता है? No. So it is the remainder. ये हमारा रिमाइंडर है क्योंकि 2 की टेबल में 1 नहीं आता और 1 बिकॉज 1 इज़ स्मॉलर देन 2, तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते. वी कांट डिवाइड 1 by 2. जब भी हमारे पास नीचे कोई डिजिट आती है तो वो हमारे डिवाइज़र से बड़ी होनी चाहिए. So we can't divide 1 by 2, that's why it is remainder, and 45 is not the multiple of 2.
45 2 का मल्टीपल नहीं है बिकॉज रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, क्योंकि आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है, 2 से 45 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ है। ओके, इफ़ विल टेक योर 46, अगर हम लोग 46 पूछते हैं कि 46 2 का मल्टीपल है या नहीं, सो विल जस्ट डिवाइड 2 2s are 4. Now we'll take it down. 6 2 3s are 6. 6 minus 6 0. Here in this case 0 is remainder here. It means that 2 की टेबल में 46 आता है. It means that this is the multiple of 2. 46 2 का मल्टीपल है. इसका आंसर आ जाएगा आपका येस। 45 2 का मल्टीपल नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट डिविजिबल एग्जैक्टली बाई 2, एंड 46 2 का मल्टीपल है बिकॉज इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, हियर एक्सरसाइज 6b, some question I am giving you for homework. Question number 1 2 3 4 and 5. You will do these questions in your book and click the picture of the pages, page number 80 and 81 and upload on Arsal. अपनी वर्कशीट के साथ आपको इनको भी Arsal पर अपलोड करना है। And everyone just complete your homework. When your school will open, I'll check your notebooks and books. Okay? आपको अपना होमवर्क ज़रूर करना है और अपलोड भी ज़रूर करना है। कल वेडनेसडे है तो आपकी सबमिशन वाली वर्कशीट जाएगी जिसे आप Arsal पे अपलोड करेंगे। ओके? आप सारे बच्चों को क्लास लेना बहुत ज़रूरी है जिससे आपकी अटेंडेंस रेगुलर रहेगी, और अपना होमवर्क ज़रूर कीजिए, बुक वर्क भी ज़रूर कीजिए एंड वर्कशीट का वर्क भी ज़रूर कीजिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।